So we are live, friends, and I welcome all the participants in our today's session. And today's session is on point-wise point discussion on ITR. And today we have with us a very eminent speaker, say Manoj Lambaji. Sir will enlighten us from his experience on filing the ITR, help us in explaining the each and every provisions of filing of ITR 7 कि उसमें क्या क्या बारीकियां हैं ITR 7 में फाइल करने के लिए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में लांबा जी हमें बताएंगे आज। लांबा जी का इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ पहले कि लांबा जी थे चार्ट अकाउंटेंट एंड ही इज कंपनी सेक्रेटरी एज वेल LLB सर ने भी करा हुआ है एंड ही इज हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सर कम से कम नहीं तो 15 साल से ज़्यादा हो गया है सर को इनकम टैक्स एक्ट में प्रैक्टिस करते हुए एंड ही इज़ द chairman of NIRCU 5 Yamuna branch as well. Till now, he has taken more than 250 webinars on and sessions on different forums of NIRCU 5CI. स्टडी कैफे पे सर के बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं एंड वेरियस अदर CP स्टडी सर्कल्स अदर ब्रांचेज ऑफ ICI एंड NIRC, उन सब पे भी सर के बहुत सारे सेशंस सर ने ले चुके हैं एंड सर हमें आज एक्सप्लेन करेंगे कि ITR 7 में क्या बारीकियां हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। Before I hand over it to the Lambaji, I want to explain two quick things to all the participants. One thing is that those who want to download the participant certificate for this free session, they can download the participation certificate from the link given in the description. In the description link, in the description, you just need to click on the link and fill your information. Your certificate will be sent on your email ID. आपकी ईमेल आईडी पे आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, उस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपको वहाँ पे फिल करनी पड़ेगी एंड प्लीज़ मेंशन करेक्ट ईमेल आईडी, सर्टिफिकेट विल बी सेंट ऑटोमेटिकली ऑन योर ईमेल आईडी ओनली। एंड हमारा 7 बजे से 9 बजे एक और सेशन स्टार्ट हो रहा है टैक्स ऑडिट के ऊपर, how to file tax audit, what are the discussions we need to do in the tax audit, close by close analysis in the tax audit, वो सारी चीज़ें 6 दिन में हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम 12 to 17 we have that session on the tax audit. Those who want to join the session on the tax audit, they can also join the session on the tax audit. Link is given in the description. अगर आपको टैक्स ऑडिट के साथ साथ ITR का भी ज्वाइन करना है देन ITR का सेशन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल इफ यू वांट टू सी द रिकॉर्डिंग यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। बट टैक्स ऑडिट का आज से स्टार्ट हो रहा है, यू विल नॉट मिस एनी सिंगल क्लास ऑफ द टैक्स ऑडिट सेशन। सो फॉर दैट सेशन आल्सो यू कैन ज्वाइन दैट टैक्स ऑडिट सेशन। लिंक ऑफ द सेम हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई चैलेंज है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस. I will share the details in the chat box as well, and I'll share the link of joining in the description. In the chat box as well. So those who are watching on the YouTube, I've shared the link, and on Facebook also I will share the link with all of you. Without wasting much time, I will invite CA Manoj Lambaji, who is our guest speaker. Sir, namaskar once again. To start our today's session, sir, over to you. Thank you, Deepak ji, for giving an introduction of me, and good evening to all. Today we are going to discuss a very important income tax return form, that is ITR 7, which is mainly meant for trusts, societies, and anyone who wants to claim exemption under section 11 or 12. So before that, I want to share my presentation with you. The topic for today's discussion is ITR 7. ITR 7, we will discuss it in detail, point by point discussion of ITR 7. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ITR 7 क्या है, किसके लिए है
हु इज एलिजिबल टू यूज दिस रिटर्न फॉर्म। हर एक फॉर्म में हमने स्टडी किया था कि कौन लोग इस फॉर्म को यूज करने के लिए एलिजिबल है। इंस्ट्रक्शन में भी हर फॉर्म में ये बताया हुआ है कि विच फॉर्म इज मेंट फॉर विच वन, किसके लिए कौन सा फॉर्म है। तो ITR 7 फॉर्म भी कौन लोग भर सकते हैं ये आपके साथ जानेंगे। हु इज एलिजिबल टू यूज दिस रिटर्न फॉर्म। द रिटर्न फॉर्म can be used by person, can be used by person including companies, including companies। ये रिटर्न फॉर्म यूज किया जा रहा है पर्सन्स के द्वारा इंक्लूडिंग कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A, सेक्शन 139 4B, सेक्शन 139 4C, सेक्शन 139 4D। यानी 4A 139 का या 4B या 4C या 4D में अगर आपने रिटर्न भरनी है, यू आर लाइबल टू फाइल रिटर्न अंडर दिस सेक्शंस ऑफ 39, दिस सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 139, then you are eligible to use, you are compulsory have to use the form for return filing is ITR 7, ITR 7। तब आपको ITR 7 में रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो मैंने 4 सेक्शन बताए, 139 4A, 139 4B, 139 4C, 139 4D। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि कंपनीज भी इसको यूज कर सकती हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कौन सी कंपनी से यूज कर सकती हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सी कंपनी से यूज कर सकती हैं। सर ITR 6 हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो ITR 7 यूज कर सकती हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक आगे चलते हैं, अभी तक मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया है। IS साहब कह रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी, सिंगल साहब कह रहे हैं सेक्शन 25 रजिस्टर्ड कंपनी, नितिन गुलाटी जी कह रहे हैं नोट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, आकांक्षा जी कह रही हैं सेक्शन 8 कंपनी। बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी जब पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड है तो सेक्शन 25 कंपनी होती थी। अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है आज की डेट में, अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो भी आप कौन से फॉर्म में रिटर्न भरेंगे, ITR 7 में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनी ITR 6 में रिटर्न भरेगी या ITR 7 में रिटर्न भरेगी, तो आपका आंसर है दोस्तों ITR 7। सेक्शन 8 कंपनी को सेक्शन ITR 7 भरना है, सेक्शन 8 कंपनी को ITR 7 भरना है। द कैटेगरी ऑफ पर्सन whose income is unconditionally exempt, the categories of person whose income is unconditionally exempt। कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन ऐसे हैं जिनकी इनकम अनकंडीशनली एग्जम्प्ट है, बिना किसी कंडीशन के, अंडर वेरियस क्लॉसेस ऑफ सेक्शन 10 and who are not mandatorily required to furnish their return of income under the provision of section 139 may use the form for filing return, and indicative list of such person is given below। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकम अनकंडीशनली एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 में और फिर भी उसे रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनकम एग्जम्प्ट है, अगर वो फिर भी रिटर्न भरना चाहता है तो अपनी रिटर्न सर वो भर सकता है ITR 7 में। कुछ ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर लोकल अथॉरिटी में रिटर्न भरनी है 10 क्लोज 20 में तो यहाँ भरेगा। रेजिमेंटल फंड और नॉन पब्लिक फंड इस्टेब्लिश्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन 10 क्लोज 23 AA ITR 7 भरेगा। फंड बाय whatever name card set up by the Life Insurance Corporation of India 10 23 AA B फॉर्म नंबर J।
अथॉरिटी। कुछ लोग आगे पूछते हैं जनरली सर मेरा खादी ग्राम बोर्ड है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड और बाय एनी बोर्ड, इस तरह के जो बोर्ड हैं उन बोर्ड्स को किस में रिटर्न भरनी है, जिनकी इनकम सेक्शन 10 अब क्लोज 23B में एग्जेम्प्ट है, तो उनके लिए भी ITR 7 है। बॉडी ऑफ अथॉरिटी है उनके लिए भी ITR 7 है। सार्क फंड है उनके लिए भी बॉडी ऑफ 7 है। तो ये कुछ एक लिस्ट दी गई है, ये आपको हर PPT शेयर हो जाएगी, आप खुद पढ़ लीजिएगा। इन सब के लिए आपको जो रिटर्न भरनी है वो ITR 7 में भरनी है। किसी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की रिटर्न है ITR 7 में जाएगी, ग्रेजुटी फंड की रिटर्न है ITR 7 में जाएगी, ESI की रिटर्न है ITR 7 में जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी की रिटर्न है ITR 7 में जाएगी, प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटी कम्युनिटी वाली कोई कॉर्पोरेशन है 1026BB में ITR 7 में जाएगी, NPS की रिटर्न भी ITR 7 में जाएगी। तो ये कुछ 26 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं जहां पर आपको जो अपनी रिटर्न है वो ITR 7 फॉर्म में भरनी है। अब आगे चलते हैं, ये कुछ एक ऐसे हैं जिनके लिए स्पेसिफिक शेड्यूल to the identity of the assessee, detail of any project or institution run by the assessee during the year, section under which return is filed, section under which exemption has been claimed. Certain schedule to this return form are mandatorily required, are mandatorily specific provision as per the following list, as per the following list। कौन कौन से एसएससी हैं? पहला पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, भारतीय जनता पार्टी में रिटर्न भरनी है, भारतीय कांग्रेस पार्टी में रिटर्न भरनी है, तो इनको एग्जेम्पशन मिलती है 13A में। 13A में if some political party is filing their income tax return in ITR 7, then schedule LA is mandatory। शेड्यूल LA मैंडेटरी, ये अभी शेड्यूल अभी मैं आपके हाथ डिटेल में करने वाला हूँ। इसी तरह से कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट है जिसने एग्जेम्पशन क्लेम करनी है सेक्शन 13B में, इलेक्टोरल ट्रस्ट है जिसने एग्जेम्पशन क्लेम करनी है 13B में, तो वो शेड्यूल ET उसके लिए मैंडेटरी है, शेड्यूल ET उसके लिए मैंडेटरी है। इसके बाद चलिए ट्रस्ट है, कोई इंस्टीट्यूशन है जो एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है अंडर सेक्शन 11 में, 1023C4 में, 1023C5 में, 1023C अब क्लोज 6 में, 1023C क्लोज 6A में, तो उसके लिए शेड्यूल A1 भरना जरूरी है, शेड्यूल A1 भरना जरूरी है। और इसी तरह है कोई एसएससी है जो 10 क्लोज 21, 10 क्लोज 22B, 10 क्लोज 23 AAA, 10 क्लोज 23B, क्लोज 23FB, क्लोज 23D, 23DA, 23EC, 23ED, 23EE, 29A, 46, 47 जो अनकंडीशनली एग्जाम्प्ट हैं उन्हें शेड्यूल 1 भरना है, और जो 1023A और 1024 की कर रहे हैं उन्हें 2 भरना है। एसएससी क्लेमिंग 1023C थर्ड AB उनके लिए IE3 है, और जो थर्ड AD एसएससी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर 1023C थर्ड AD और थर्ड AD के हाथ ही 1023 है थर्ड AE, यानी एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो हम लोगों के पास जनरली होते हैं, उनके केस में शेड्यूल IE4 भरना मैंडेटरी है। तो लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर जरा अटेंशन दे लीजिएगा, इस पर जरा ध्यान दे लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। सर आगे चलते हैं, 134(9)E में किसने रिटर्न भरनी है? अभी हमने शुरू जब किया था तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि अगर किसी ने 139(4)A में रिटर्न भरनी है, 139(4)B में रिटर्न भरनी है, 139(4)C में रिटर्न भरनी है, या 139(4)D में रिटर्न भरनी है, तो उनके लिए फॉर्म ITR 7 है। अब आपसे कोई पूछ ले कि किन्होंने 39(4)A में रिटर्न भरनी है, विच टाइप ऑफ assessees आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A।
अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द एसएससीज हु आर लायबल टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4A, तो वो कौन से एसएससी हैं, जरा चैट बॉक्स में लिख के जल्दी से बताइएगा। जिन्होंने सेक्शन 11 की एग्जामिशन क्लेम करनी है दोस्तों, वो सभी एसएससीज 139(4)A में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। यानी सेक्शन 11 में कोई भी ट्रस्ट या सोसाइटी हो सकती है जिनकी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एग्जेम्प्ट होती है, वो रिक्वायर्ड है अपनी रिटर्न 139(4)A में भरने के लिए। तो यहाँ पर आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपने यहाँ पर सेक्शन कोड सही सिलेक्ट करना है। अगर सेक्शन कोड आपने गलत चूज कर लिया तो सारा ITR 7 फॉर्म गलत हो जाएगा। चूजिंग प्रॉपर सेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ ITR 7 इज मस्ट। तो 139(4)A उन सभी लोगों के लिए रिटर्न का फॉर्म है जिन्होंने सेक्शन 11 में एग्जम्पशन क्लेम कर है। नेक्स्ट 139(4)B 4B किसके केस में सेलेक्ट होगा? 4B कौन से केस में सेलेक्ट होगा? जो पॉलिटिकल पार्टी है या इलेक्टोरल ट्रस्ट है। पॉलिटिकल पार्टी मैंने यहाँ पे लिख दिया PP, पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट है। तो ऐसी दिशा में आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है, सेक्शन यूज करना है 139(4B। तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो गया 4B और सेक्शन 11 वालों के लिए हो गया 4A। और अब आ जाते हैं ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन जिनकी रिसीट 5 करोड़ रुपए से कम है और उन्होंने ITR 7 फॉर्म में रिटर्न भरनी है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन अपनी रिटर्न कौन से फॉर्म में भरेंगे, जल्दी से मेरे को लिख के बताइएगा। कौन से सेक्शन में भरेंगे चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताएं। आप बी फास्ट, चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जिसकी रिसीट 5 करोड़ रुपए से कम है और उसकी सारी की सारी इनकम एग्जम्प्ट है, उसे किस क्लोज में रिटर्न भरनी है 139 के? 139 4A, 4B, 4C या 4D? जल्दी से बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कमेंट्स की। बी फास्ट। कोई कमेंट नहीं आ रहा, चलिए मैं ही बताता हूँ। सेक्शन 139(4C) की अगर आपने रिटर्न सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे 2 क्लोसेस हैं, ये देखिए सर। सेक्शन 10 23C 3rd AD, सेक्शन 10 23C 3rd AE, that is for educational institution and that is for medical institution, educational institution and मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कहाँ पर आपको रिटर्न भरनी है। तो 4A के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया, 4B के बारे में भी दे दिया, 4C के बारे में भी दे दिया। और 4D में किसने भरनी है सर? 4D में किसने भरनी है? जिनकी इनकम सेक्शन 10 क्लोज 21 में फॉल करती है, रेड विद सेक्शन 35 अब सेक्शन 1 SV साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ऐसे स्पेसिफिक बिजनेस जिनके लिए एग्जाम्पशन लेनी है, वही लोग सिर्फ 4D में फॉल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अदर्स जो रह गए जिन्होंने वॉलंटरी फाइल करनी थी वो अदर्स आ जाएंगे सर, उनके लिए अदर्स। तो 4 में आपको ध्यान क्या देना है? ITR 7 भरते हमें पहली बार 139 सेक्शन में जानी है। 139 के सब सेक्शन 4 में A में रिटर्न भर रहे हैं, 4B में रिटर्न भर रहे हैं, 4C में रिटर्न भर रहे हैं या 4D में रिटर्न भर रहे हैं। अगर आप 4A, 4B, 4C, 4D में फॉल नहीं करते और आपकी इनकम अनकंडीशनली एग्जेम्प्ट है तो आप अदर्स की कैटेगरी में आएंगे। अदर्स की कैटेगरी में आएंगे और आपको यहाँ पर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। CA नितिन गुलाटी जी पूछ रहे हैं, इज लिमिट इज इंक्रीज टू 5 करोड़? यस नितिन जी, लिमिट 5 करोड़ हो चुकी है। अब उसके बाद है क्लासिफिकेशन देना है। प्लीज सिलेक्ट द नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड क्लासिफिकेशन देयरऑफ फ्रॉम ड्रॉप डाउन बॉक्स लिस्ट बिलो।
तो यहाँ पर आपको ITR 7 भरते हमें आपको पता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 है जो चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन देता है। सेक्शन 2 क्लोज 15, सॉरी सब सेक्शन बार बार निकल जाता है, मैंने खुद ही पढ़ाया था आपको और बार बार मुंह से निकल जाता है। सेक्शन 2 क्लोज 15, सेक्शन 2 क्लोज 15 विच गिव्स द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल पर्पस। वहां पर आपने देखना है चैरिटेबल और रिलीजियस की जो परिभाषा है उसमें है आप किस कैटेगरी में प्रेयर कर रहे हैं। आपको क्लासिफिकेशन में ए भरना है अगर आप रिलीफ टू पुअर का काम कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं बी भरना है, मेडिकल रिलीफ कर रहे हैं सी भरना है, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं डी भरना है, प्रिजर्वेशन ऑफ मोमेंटोस एंड प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट कर रहे हैं ई भरना है, और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी कर रहे हैं, अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी कर रहे हैं तो इसके अंदर एफ भरना है। योगा करवा रहे हैं तो इसकी भी एग्जाम्प्ट हो सकती है, जी भरना है, और रिलीजियस एक्टिविटी है तो एच भरना है। तो ए से लेके एच तक वाले कोड मैंने आपने बता दिए। इफ यू आर एंगेज इन चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी देन यू हैव टू चूज एनी कोड, एनी वन कोड ऑफ दिस 8, और एक से ज्यादा तो एक से ज्यादा कोड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, A for relief for poor, B for education, C for medical relief, D for preservation of environment, E for preservation of monuments and places of artistic and historic interest, F for general public utility, G for yoga and H for religious. And then come to research. अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो सोशल रिसर्च है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च है या एनी अदर रिसर्च है। रिसर्च में 3 ही कोड है, सोशल, स्टैटिस्टिकल और एनी अदर रिसर्च। और न्यूज़ एजेंसी की अगर मैं बात करूं, लॉ, मेडिसन, अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कंपनी सेक्रेटरीज, मिनिस्ट्री, मटेरियल मैनेजमेंट, टाउन प्लानिंग, एनी अदर प्रोफेशन। तो प्रोफेशनल बॉडी अगर अपनी कोई लॉ इंस्टीट्यूट अपनी रिटर्न भर रहा है तो यहाँ पे आएगा, मेडिसन एम्स अपनी रिटर्न भर रहा है तो ये करेगा, ICAI अपनी रिटर्न भर रहा है तो अकाउंटेंसी टिक करेगा, इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग करेगा, आर्किटेक्चर वाला आर्किटेक्चर करेगा, कंपनी सेक्रेटरी वाला कंपनी सेक्रेटरी करेगा, लाइक दैट। तो प्रोफेशनल बॉडीज के लिए यहाँ पर कोड दिए गए हैं। ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट, और अदर्स के केस में ये बाइफिकेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड 10 क्लोज 47, स्पेसिफाइड इनकम अराइजिंग टू ए बॉडी, अथॉरिटी, बोर्ड, ट्रस्ट, कमीशन अंडर सेक्शन 10 क्लोज 46। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं ITR 7 फॉर्म। तो ITR 7 फॉर्म किन लोगों के लिए? इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज required to furnish return under section 139 4A, 4B, 4C, 4D only, और C ये हमने आपको पहले भी बता दिया। अब आते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। एक ये शेड्यूल है जनरल इन्फॉर्मेशन में, वेदर एनी प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशन इज रन बाय SSC, इफ यस प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंस्टीट्यूशन रन बाय A। तो एक पर्टिकुलर ट्रस्ट है या एक पर्टिकुलर सोसाइटी है तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट या काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन वो रन कर रही हो, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशन रन कर रही हो। एक सोसाइटी है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी रन कर रही है, वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन भी रन कर रही है, वो योगा भी सिखा रही है, वो कोई एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी भी कर रही है। तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशन, वेदर एनी प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशन इज रन बाय SSC, पहले पूछते हैं कोई किया जा रहा है, ऐसे ही आप यस करते हैं तो आपको उन प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशंस की डिटेल देनी ITR 7 फॉर्म में जरूरी है। क्या क्या डिटेल देनी है? आपको नाम ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंस्टीट्यूशन बताना है, आपको नेचर ऑफ एक्टिविटी बताना है। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ कि वॉइस ब्रेक हो रही है, आई डोंट नो मेरे यहाँ पे ही हो रहा है या फिर आपके यहाँ से है। सो चैट बॉक्स में कैन यू प्लीज राइट वेदर वॉइस इज ओके और नॉट। लामा जी की वॉइस क्लियर है तो वी विल कंटिन्यू, देन आई विल चेक माय नेटवर्क।
जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स लिख के, हमारे पास समय कम है ताकि हम। Yes, please clearly write in the chat box if voice is okay or not. And description में link दे दिया है in case you want to join the Taxolid session which is going to start in another 1 hour. So you can join that course as well. Description में आपको link दिया हुआ है, उससे आप सुन सकते हैं. Sir, voice clear है? You can continue. I think मेरे network में problem थी. ओके, नेम और प्रोजेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात हम कर रहे थे कि यहाँ पर आपको जितने भी इंस्टीट्यूशन है, मान लो कि एक सोसाइटी है या एक ट्रस्ट है, वो 4 स्कूल या कॉलेजेस चला रहा है, तो यहाँ पर चारों प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशंस के नाम आएंगे, उस प्रोजेक्ट या इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी आएगी, और जो भी हमने क्लासिफिकेशन कोड बताए किस कैटेगरी में वो क्लासीफाई करते हैं, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। आगे चलते हैं सर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये क्या कह रहा है, डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल। आपको पता है, या तो आप रजिस्टर्ड होते थे या अप्रूवल होती थी इनकम टैक्स में। मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी if required to be registered, mandatory if required to be registered। तो आपने यहाँ पे बताना है सेक्शन अंडर विच इज रजिस्टर्ड और अप्रूव। आप 1023C में आपके पास अप्रूवल थी, सेक्शन 12A में थी, 12AA में थी, आपके पास 35 में थी, 80G में थी, 80GG में थी, जो भी आपका सेक्शन है आपको यहाँ बताना है सेक्शन अंडर विच रजिस्टर्ड और अप्रूव। उसके बाद आपको बताना है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल सेकंड कॉलम है। फिर आपका जो अप्रूवल है, नोटिफिकेशन से नोटिफाई हुई है या रजिस्ट्रेशन नंबर है। अप्रूवल है तो अप्रूवल नंबर होगा, कोई साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है तो उन्हें गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे आपकी अप्रूविंग और रजिस्टरिंग अथॉरिटी क्या थी। फिर उसके बाद पूछ रहा है वेदर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज मेड एज पर न्यू प्रोविजंस, क्या आपने नए प्रोविजंस के अंदर एप्लीकेशन मेड कर दी है। सेक्शन अंडर विच रजिस्ट्रेशन इज अप्लाइड, किस प्रोविजन में आपने अप्लाई की है। डेट ऑन विच द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल एज पर न्यू प्रोविजन ऑफ मेड, नया प्रोसीजर जो आया है चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी को रजिस्टर कराने के लिए, किस डेट को आपने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल के लिए मेड की है। और सेक्शन ऑफ एग्जम्पशन ऑप्टेड अंडर द न्यू लॉ, किस सेक्शन में आप एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जिसमें आपको सारी जानकारी देनी है कि किस सेक्शन में अप्रूवल सीख कर रहे हैं, पुराना अप्रूवल की सीकिंग क्या थी, उसका नंबर क्या था, किसने अप्रूव कर दी थी, नई में एप्लीकेशन मेड की है कि नहीं की है, किस सेक्शन में अप्लाई किया है और किस प्रोविजन के अंतर्गत अप्लाई किया है, किस डेट को अप्लाई किया है, सेक्शन क्या है जिसमें नए प्रोविजन में मिल रही है। तो दिस इज आल्सो ए मैंडेटरी शेड्यूल टू बी फिल्ड व्हाइल फाइलिंग दी ITR 7। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल अंडर एनी लॉ अदर देन इनकम टैक्स है, अदर देन इनकम टैक्स है। जैसे सोच कीजिए कोई FCRA में रजिस्टर्ड है, कोई FCRA में रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। कोई सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो भी यहाँ पर डिटेल देनी है, कोई ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है वो भी डिटेल देनी है, कोई चैरिटी कमीशन के पास रजिस्टर्ड है तो वो भी यहाँ पर डिटेल देनी है। मतलब इनकम टैक्स कानून के, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है लेकिन कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो भी आपने देनी है। अंडर विच एक्ट अदर देन इनकम टैक्स एक्ट यू आर रजिस्टर्ड, यू हैव टू गिव डिटेल हियर। तो आपने क्या बताना है, लॉ अंडर विच रजिस्टर, कौन से कानून के अंतर्गत आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। लॉ अंडर विच रजिस्टर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल, अप्रूवल, नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, अप्रूविंग और रजिस्टरिंग अथॉरिटी। लॉ अंडर विच रजिस्टर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल, अप्रूवल, नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, अप्रूविंग रजिस्टरिंग अथॉरिटी क्या है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मेंशन करनी है। तो ये शेड्यूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है
रजिस्ट्रेशन अदर देन इनकम टैक्स एक्ट की, रजिस्ट्रेशन अदर देन इनकम टैक्स एक्ट की। तो यहाँ पर आपको करना है। अब आगे कुछ क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं आपसे, ध्यान दीजिएगा। वेयर इन एनी प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशन रन बाय, वेयर इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशन रन बाय यू, जो प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशन की दे देती, one of charitable purpose is advancement of any other object of general public utility, any other object of general public utility, any other object of general public utility। आपको पता है 215 में एक नया वर्ड जोड़ा गया था, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अगर आपकी टोटल रसीद का एक हिस्सा जनरल पब्लिक यूटिलिटी से आ रहा है और एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल है। अब वो टैक्सेबल है तो यहाँ पर उसने पूछ लिया क्या कोई प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशन जो आप रन कर रहे हैं उनमें से एक चैरिटेबल पर्पस क्या कोई ऐसा है जो एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव यूटिलिटी है। तो क्या बताना है, वेदर देयर इज एनी एक्टिविटी, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस है। कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, स्कूल है, कोई कंटीन खुली हुई है, स्कूल में कंटीन ओपन है, स्कूल में बुक शॉप ओपन है, स्कूल में स्टेशनरी शॉप ओपन है, हॉस्पिटल के बाद आपने डायग्नोस्टिक सेंटर खोला हुआ है, हॉस्पिटल के बाद आपने मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, तो हॉस्पिटल के बाद आपने कंटीन बनाई हुई है, हॉस्पिटल के बाद आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। ये क्या है, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। तो ये कह रहा है वेदर देयर इज एनी एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 15, यस या नो। तो आपने बताना है, अगर यस किया आपने देन परसेंटेज ऑफ रसीट फ्रॉम सच एक्टिविटी, टोटल रसीट का कितना परसेंट आपको जनरल पब्लिक यूटिलिटी से आ रहा है, टोटल रसीट का कितना परसेंट आपको जनरल पब्लिक यूटिलिटी के ऑब्जेक्ट से आ रहा है, आपको यहाँ एग्जैक्ट परसेंटेज बतानी है, यहाँ पर एग्जैक्ट परसेंटेज बतानी है। फिर आगे आपसे पूछता है वेदर देयर इज एनी एक्टिविटी ऑफ रेंडरिंग एनी सर्विस इन रिलेशन टू एनी ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस। कह रहे हैं कि आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है सर्विस की, कोई एक्टिविटी है सर्विस की इन रिलेशन टू ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रेफर टू इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 15। तो यहाँ पर यस करते हैं तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ रिसीट फ्रॉम सच एक्टिविटी ऑफ टोटल रिसीट, तो टोटल रिसीट की परसेंटेज बतानी है। तो ये शेड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ ए और बी इज यस, ए और बी ऊपर आपने यस किया है, ए या बी में है कोई भी यस किया है, द एग्रीगेट एनुअल रिसीट फ्रॉम सच एक्टिविटी फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन, वहां परसेंटेज बताई थी, यहाँ पर अमाउंट बताना है। किस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उससे कितनी एग्रीगेट एनुअल रिसीट फ्रॉम सच एक्टिविटी आई है। सच एक्टिविटी बोले तो एक्टिविटी ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। तो यहाँ पर उसका आपने नेम ऑफ द प्रोजेक्ट भी बताना है और एग्रीगेट एनुअल रिसीट फ्रॉम सच एक्टिविटी भी बताना है। फिर आगे चलते हैं, आपसे पूछा जाता है क्या आपने ATG में अप्रूवल ऑब्टेन की है, यस या नो। अगर की है तो उसका नंबर बताइए, डेट ऑफ अप्रूवल बताइए, डेट ऑफ अप्रूवल बताइए। आगे पूछता है इज देयर एनी चेंज इन ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ विच अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड, अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड। क्या जो आपके ऑब्जेक्ट्स थे, जो एक्टिविटीज थी, क्या उसमें ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज हुआ है जिसके बेस पर रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल आपको ग्रांट हुई थी। अगर हुआ है तो आपको डिटेल ऑफ सच चेंज बतानी है, डिटेल ऑफ सच चेंज बतानी है। क्या पूछ रहा है, डेट ऑफ सच चेंज, किस डेट से ये चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ है वेदर एन एप्लीकेशन फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन हैज बीन मेड इन प्रिस्क्राइब्ड form and manner within the stipulated period of 30 days as per the clause AB of subsection A1 of section 12A। वो कह रहा है कि अगर इस तरह का कोई चेंज हुआ है तो क्या आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और मैनर में स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 30 डेज में
एप्लीकेशन लगा दी है कि नहीं लगा दी, यस या नो कीजिए। क्या एप्लीकेशन लगाई थी तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया है या नहीं हुआ, और अगर ग्रांट हो गया है तो ग्रांट होने की डेट क्या थी, ग्रांट होने की डेट क्या थी, ये सारी डिटेल आपको ITR 7 भरते हमें देनी है। इसके बाद सर आगे यही नहीं रुके, वो पूछ रहा है कि मैंने भी जैसे पहले बात की थी, क्या आप FCRA एक्ट में रजिस्टर्ड है, वेदर रजिस्टर्ड अंडर FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यस या नो बताना है। अगर आपने यस किया रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बतानी है, और जैसे ही आपने ये टिक किया तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ बताना है। स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच अबव कंट्रीब्यूशन इज रिसीव्ड, स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच अबव कंट्रीब्यूशन इज, आपको पर्पस भी बताना है कि फॉरेन से पैसा आया था, कहाँ से आया। यानी अगर आप फॉरेन से कोई डोनेशन ले रहे हैं, फॉरेन से कोई कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो पहले बताना है FCRA में रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, डेट क्या थी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितनी आई, फॉरेन कंट्रीब्यूशन किस पर्पस के लिए आई। उसके बाद आगे आपसे पूछता है अगर आप बताइए, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताइए। सर अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये AOP के बारे में बात कर रहा है। वेदर लाइबल टू टैक्स, वेदर लाइबल टू टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट अंडर सेक्शन 164, क्या आप सेक्शन 164 में MMR पर आपकी इनकम टैक्सेबल है कोई, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर सेक्शन 164 में। कब होगा, जब आपका कोई डिसअलाउंस है 13(1)(c) में या 13(1)(b) में, ये बाद में बात करेंगे। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्या ये आपकी पहली रिटर्न है, क्या ये आपकी पहली रिटर्न है, तो ये सारे सवालों को आपको जवाब देने हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपकी इनकम टैक्स के किस अंडर इनकम टैक्स, यस करेंगे तो आपको डिटेल बतानी पड़ेगी किस सेक्शन में ऑडिट होना था, किस किस सेक्शन में आपका ऑडिट होना था, कौन ऑडिटर का नाम क्या है, मेंबरशिप नंबर क्या है, जैसे बाकी फॉर्म में बताते थे, ऑडिटर का नाम और फर्म नेम क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है, फर्निशिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है। सर आगे चलते हैं। इफ लाइबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट, under any act other than income tax act, mention please section and date of furnishing the tax audit report, section and date of section audit report। अगर आपका किसी और कानून में ऑडिट होना था अदर देन इनकम टैक्स एक्ट, मान लो अगर कंपनी है, जैसे आपने कहा था अभी सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी के केस में आपका कंपनी सेक्ट में भी ऑडिट होगा, तो यहाँ पर बताना है आपने कंपनी सेक्ट, यहाँ डेट बतानी है, या एक्ट एंड सेक्शन बताना है, या डेट बतानी है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये डिटेल भी बतानी है। सर आगे चलते हैं। पर्टिकुलर ऑफ पर्सन हु वर मेंबर इन द AOP एज ऑन 31 मार्च 2021 टू बी फिल्ड बाय वेंचर कैपिटल फंड और इन्वेस्टमेंट फंड। पर्टिकुलर ऑफ पर्सन हु वर मेंबर इन AOP ऑन 31 मार्च 2021 टू बी फिल्ड बाय वेंचर कैपिटल फंड एंड इन्वेस्टमेंट फंड। तो यहाँ पर आपने डिटेल देनी है, उनका सीरियल नंबर बताना है, कौन सा, ऐसे पर्सन जो मेंबर्स हैं AOP के ऑन 31 मार्च 21 में, इसके किसी वेंचर कैपिटल फंड के या इन्वेस्टमेंट फंड के। तो नेम एंड एड्रेस बताना है, परसेंटेज ऑफ शेयर बताना है मेंबर का अगर डिटर्मिनेट है, उसका पैन नंबर बताना है, उसका आधार नंबर बताना है, उसका स्टेटस बताना है, उसका स्टेटस बताना है। ये डिटेल देनी जरूरी है। और अब आइए बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है आप जितना पैसा आपको ट्रस्ट में 85% स्पेंड करना होता है सर, और 85% अगर आप किसी कारणवश स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं तो उस पैसे को आप आगे एकोमुलेट करते हैं किसी स्पेसिफाइड मोड में लगाकर या इस तरह की इन्वेस्टमेंट करके, जिससे कि आने वाले सालों में
आप इसे आगे इन्हीं पर्पसेस के लिए यहाँ से विड्रॉ कर कर यूज कर पाए। तो ये शेड्यूल आई है सर, शेड्यूल आई है। शेड्यूल आई की चीज़ का है, डिटेल ऑफ अमाउंट्स accumulated, डिटेल ऑफ अमाउंट्स accumulated or set apart within the meaning of section 11 subsection 2 and in the term of third proviso to section 1023 की। हर तो इसमें क्या बताना है आपने? देखिए क्या क्या बताना है आपको। ईयर ऑफ एकोमुलेशन बतानी है। ये ईयर ऑफ एकोमुलेशन आ रही है, आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट accumulated इन द ईयर ऑफ एकोमुलेशन। 14-15 में कितना एकोमुलेट किया था, 15-16 में कितना किया, 16-17 में कितना किया, 17-18 में कितना किया, इस तरह से किस पर्पस के लिए आप ये एकोमुलेट कर रहे थे, पर्पस ऑफ एकोमुलेशन क्या था। फिर आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल ऑब्लिक रिलीजियस पर्पसेस अप टू द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल से अब तक आपने कितना अमाउंट चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर दिया है, यूज कर दिया है। अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन द मोड्स स्पेसिफाइड इन 11.5। 11.5 वाले भी मोड्स अभी हम डिस्कस करेंगे। 11.5 वाले स्पेसिफाइड मोड्स में आपने कितना कितना पैसा जमा कराया है और इसमें से कितना अमाउंट अप्लाइड किया है चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए ड्यूरिंग दी है। आउट ऑफ 5 में से 6 कितना किया है। और बैलेंस अमाउंट अवेलेबल फॉर एप्लीकेशन अब कितना है। बैलेंस अमाउंट अवेलेबल फॉर एप्लीकेशन कितना है। 7 इक्वल टू 2 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 6 2 माइनस 4 माइनस 6, यही नीचे इन्होंने फॉर्मूला दिया, यहाँ पर ये बैलेंस आएगा सर। और उसके बाद जो आप स्पेंड नहीं कर पाए स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए स्पेसिफाइड टाइम में, वो क्या हो जाएगा। अमाउंट डीम्ड टू बी इनकम विद इन मीनिंग ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 11। अमाउंट डीम्ड टू बी इनकम विद इन द मीनिंग ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 11, वो अमाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये शेड्यूल था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब ये शेड्यूल है जो बता रहा है कि आपने 11 शेड्यूल जे में शेड्यूल स्टेटमेंट showing the fund and investment as on the last day of the previous year to be filled if registered under 12 और 12A। अगर आप सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड हैं, 12AA में रजिस्टर्ड हैं, या सेक्शन 10 हब क्लोज 23 क्लोज 23C हब क्लोज 4 में फॉल करते हैं, 10 क्लोज 23C हब क्लोज 5 में फॉल करते हैं, 10 23C हब क्लोज 6 में फॉल करते हैं, 10 23C हब क्लोज 6A में फॉल करते हैं, या 10 क्लोज 21 में फॉल करते हैं। तो ये डिटेल देनी जरूरी है, ये डिटेल देनी उन लोगों के लिए जरूरी है। क्या बताना है। बैलेंस इन दी कॉर्पस फंड, बैलेंस इन दी कॉर्पस फंड एज ऑन दी लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। कॉर्पस फंड का बैलेंस क्या था लास्ट डेट को। और ये कहाँ पूछ रहा है, ऊपर पूछा कॉर्पस फंड का, नीचे पूछ रहे नॉन कॉर्पस फंड में लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर को कितने पैसे पड़े थे। नॉन कॉर्पस फंड में कितने पैसे थे ये यहाँ पर बताना है सर। उसके बाद सर आपने मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बताने हैं। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट 11.5 में डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट मेड अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 में। तो आपने बताना है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सेविंग स्कीम कितनी थी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में कितने थे, डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पर सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 सब क्लोज 3 कितना था, इन्वेस्टमेंट इन यूटीआई कितनी थी, और एनी अदर है तो कितना है। ये पांचों हेड में आपको बता दी उसने। गवर्नमेंट सेविंग स्कीम में कितना है, जीएसएस में कितना है, पोस्ट ऑफिस में कितना है, शेड्यूल बैंक में कितना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना है, यूटीआई में कितना है, एनी अदर कितना है, किस डेट को ये इन्वेस्टमेंट की गई थी वो बताना है, मैच्योरिटी कब होगी ये बताना है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है ये बताना है,
और इस इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा ये भी बताना है। इस इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा ये भी आपको बताना है। तो ये शेड्यूल मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इसके बाद सर, इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कंसर्न और इन विच पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, हैज ए सब्सटेंशियल, जिसमें हमारे ट्रस्टीज का या ट्रस्टीज के रिलेटिव्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इन संस्थाओं में, इन कंसर्न में। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, किस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कंसर्न इन विच पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इस कंसर्न का नाम बताना है, क्या ये कंसर्न कंपनी है ये बताना है, इसमें कितने शेयर हेल्ड कर रहे हैं ये बताना है, कौन सी क्लास के शेयर है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है ये बताना है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है ये बताना है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या हुई है ये बताना है, वेदर अमाउंट इन कॉलम 6, अमाउंट इन कॉलम 6 यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है, एक्सीड्स 5% ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो आपने अमाउंट अदर कंसर्न में इन्वेस्ट कर रखा था क्या उसकी कैपिटल के 5% से ज़्यादा है? ये सारी डिटेल आपको इस वाले शेड्यूल में देनी है। एक बार फटाफट फिर से रिपीट कर रहे हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसर्न बताना है, वेयर द कंसर्न कंपनी है वो बताना है, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बताने हैं, क्लासेस ऑफ शेयर हेल्ड बतानी है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बनानी है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बताना है। सर अदर इन्वेस्टमेंट अगर कहीं और हैं, जो अदर का कॉलम था, तो आपने उस कंसर्न का नाम बताना है, कंसर्न क्या कंपनी है ये बताना है, क्लासेस ऑफ शेयर हेल्ड बताना है, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बताना है और नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना है। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है यहाँ पर आपने बतानी है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस and donation received in kind but not converted into investment in the specified mode under section 11 subsection 5 within the time provided। जो डोनेशन या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन काइंड में आई थी लेकिन अभी तक आपने इन्हें स्पेसिफाइड मोड जो सेक्शन 11 सेक्शन 5 में बताए गए हैं उसकी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं किया है, उसकी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं किया है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। आपको बताना है नेम एंड एड्रेस ऑफ द डोनर क्या था, वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन और डोनेशन क्या थी, वैल्यू और कंट्रीब्यूशन अप्लाइड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव कितनी हुई है, अमाउंट आउट ऑफ 3 जो कंट्रीब्यूशन आई थी इनमें से कितना स्पेसिफाइड मोड्स में इन्वेस्ट कर दिया गया है और कितना ऐसा है जो आपकी इनकम क्रेडिट होगा अंडर सेक्शन 11 अब सेक्शन 3। तो ये एक और इम्पोर्टेंट शेड्यूल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यहाँ पर आपने बताना है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस एंड डोनेशन रिसीव्ड इन काइंड बट नॉट कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट in the specified mode in modes under section 11 subsection 5 within the time provided। तो जल्दी से चलते हैं सर। यहाँ पर हमें अपने जैसे शेयर होल्डर्स की डिटेल देनी होती थी, यहाँ पर ऑथर की डिटेल देनी है, ट्रस्ट के फाउंडर की डिटेल देनी है, ट्रस्टीज की डिटेल देनी है, मैनेजर की डिटेल देनी है। मैंडेटरी टू बी फिल्ड है ये सभी लोगों ने भरना है। जो भी लोग ITR 7 भर रहे हैं उनके लिए ये फॉर्म, ये वाला शेड्यूल के भरना अनिवार्य है। क्या क्या बताना है फटाफट कर लेते हैं। ऑथर, फाउंडर, सेटलर के केस में नेम एंड एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर। और ऐसे पर्सन जो ट्रस्टी मैनेजर हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ट्रस्टीज के भी एड्रेस, पैन और आधार नंबर। ऐसे पर्सन जिन्होंने सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन मेड की है टू द ट्रस्ट इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 और सब क्लोज बी, उनका भी नाम, पैन और आधार नंबर। और इनके रिलेटिव है ऑथर के, कोई फाउंडर के, ट्रस्टी के, मैनेजर के, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर के, या फाउंडर, ट्रस्टी, मैनेजर, सब्सटेंशियल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और इसके नेम ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली क्या हैं और उनके रिलेटिव्स क्या हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है शेड्यूल के। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं
तो पॉलिटिकल पार्टी के केस में ये शेड्यूल LA भरना जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टी के केस में शेड्यूल LA भरना जरूरी है। और पूछ रहा है किताबें बनाई हैं कि नहीं। वेदर एनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए पर्सन इन एक्सेस ऑफ 20,000 रुपीज वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या कोई ऐसा पर्सन है जिससे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आई है पार्टी फंड में 20,000 रुपये से ज़्यादा? यस करना है या नो करना है, ये आपने देखना है। इफ़ यस वेदर रिकॉर्ड ऑफ, अगर है, अगर 20,000 से ऊपर वाले लोग हैं, 20,000 से ऊपर वाले लोग हैं, तो क्या करना है? वेदर रिकॉर्ड ऑफ ईच वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अदर देन कंट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन एक्सेस ऑफ 20,000 रुपीज इंक्लूडिंग नेम and address of person who has made such contribution were maintained। जिन लोगों ने 20,000 रुपये से ज़्यादा दिए हैं बॉन्ड के अलावा, क्या आपने उनके नेम, एड्रेस और कंट्रीब्यूशन अमाउंट का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन किया है? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है। ये शेड्यूल सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अब क्या इसके अकाउंट्स ऑडिट होने हैं? वेदर अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं, ऑडिटर की डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अब आगे हर बड़ा इंपॉर्टेंट, वेदर एनी डोनेशन एक्सीडिंग 2,000 रुपीज वाज रिसीव्ड अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम थ्रू ए बैंक अकाउंट और थ्रू एन इलेक्ट्रोल बॉन्ड। वो कह रहा है कोई भी डोनेशन 2,000 रुपये से ज़्यादा की कोई ऐसी है जो अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू ए बैंक अकाउंट और थ्रू ए इलेक्ट्रोल बॉन्ड आई है, तो आपने ध्यान देना है इन केस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कोई भी डोनेशन 2,000 रुपये से ज़्यादा की थ्रू बैंकिंग मोड के अलावा नहीं आ सकती। अब सर अगला 5वां सवाल पूछा जा रहा है, वेदर द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 29C, वेदर द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 29C of the Representation of People Act 1951 for the financial year has been submitted, yes या no। अगर yes है तो डेट भी बतानी। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस में शेड्यूल VC है हमारा, टू बी फिल्ड मैंडेटली बाय पर्सन फाइलिंग ITR 7। ये सभी लोगों ने ये शेड्यूल भरना है। जिन लोगों ने भी ITR 7 भरना है सबके लिए ये मैंडेटरी शेड्यूल है। सिर्फ मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट शेड्यूल मैंने आपके हाथ उठाए हैं सर। सबसे पहले पूछ रहा है कि लोकल कौन सी आई हैं, कॉर्पस फंड डोनेशन कितनी है और अदर देन कॉर्पस डोनेशन ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी अंडर CSR कितनी है, अदर स्पेसिफिक ग्रांट कितनी है, अदर डोनेशन कितनी है, वॉलंटरी इंडिया से आई हैं। पहले आपसे पूछा गया कॉर्पस कितनी है और फिर पूछा गया नॉन कॉर्पस कितनी है। फिर नॉन कॉर्पस के 5 हिस्से कराए गए, गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है, कंपनी से कितनी ग्रांट है, स्पेसिफिक ग्रांट कितनी है, अदर डोनेशन कितनी है, और ये बन के आपकी आ गई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। फिर आपसे पूछता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितना है, कॉर्पस फंड डोनेशन कितनी आई है, अदर देन कॉर्पस फंड डोनेशन कितनी आई है फॉरेन से। फिर ये आपकी हर टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएंगे सर। उसके बाद पूछ रहा है एनोमियस डोनेशन इंक्लूडेड इन C चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 BBC, जिन पर फ्लैट टैक्स लगना है सर। एनोमियस डोनेशंस अगर कोई हैं जो ऊपर वाले अमाउंट में इंक्लूड हैं जिसमें चार्जेबल होना है टैक्स अंडर सेक्शन 115 BBC। ये क्या कह रहा है, एग्रीगेट ऑफ सच एनोमियस डोनेशन रिसीव्ड डोनेशन जितनी भी हैं चार्जेबल होंगी सेक्शन 115 BBC में एट द रेट ऑफ 30%, एट द रेट ऑफ
30%, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है। फिर उसके बाद पूछ रहा है एग्रीगेट ऑफ इनकम ड्राइव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को छोड़कर, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को छोड़कर अगर कोई है, किसने भरना है? सारे एसएससी ने भरना है सर, जिन्होंने सेक्शन 11, 12, 1023C4, 1023C5, 1023C6A की डायरेक्शन क्लेम करनी है। मेन ऑब्जेक्ट्स के लिए रिसीट कितनी हुई है, इंसिडेंटल के लिए कितनी हुई है, रेंट कितना है, कमीशन कितना है, डिविडेंड इनकम कितना है, इंटरेस्ट इनकम कितना है, एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, नेट कंसिडरेशन और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट कितनी है, एनी अदर इनकम कितनी है, पास थ्रू इनकम कितनी है, ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर अप्लाइड टू स्टेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। रेवेन्यू अकाउंट, सर देखिए कोई यहाँ बैलेंस शीट और नहीं बन रही, पहले आपसे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दिया, अब खर्चे पूछ रहे हैं। पहले आपसे पूछा इस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं, रेंट कितना है, रिपेयर कितना है, कंपनसेशन कितनी है, इंश्योरेंस कितना है, वर्कमैन कितना है, पीएल की तरह हेड बना दिए हैं। अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे पूछा, जितने एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। फिर पूछ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन कितने हैं। आपके एक्सपेंडिचर ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन कितने हैं, डोनेशन अदर देन कॉर्पस कितनी है, रिलीजियस कितनी है, रिलीफ टू पुअर क्या है, एजुकेशनल कितना है, योगा कितना है, मेडिकल रिलीफ पर कितना खर्च किया है, एनवायरनमेंट प्रिजर्व करने पे कितना किया है, मोनूमेंट्स पे कितना किया है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी कितना किया है, और डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं। बेड डेस्क का खर्चा नहीं मिलेगा, प्रोविजन का नहीं मिलेगा, डोनेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस फंड अगर यहाँ पर कोई लिया हुआ तो नहीं मिलेगा, एनी अदर डिसअलाउ एक्सपेंडिचर जो आ जाएगा ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सोर्स ऑफ फंड टू मीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आगे पूछ रहा है आपके पास ये जो खर्चा किया इससे मेट करने के लिए साधन क्या थे, इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फिर आगे सर आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट अप्लाइड टू चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया फॉर स्टेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल अकाउंट। पहले सर रेवेन्यू अकाउंट पे पूछा गया था आपने क्या एक्सपेंडिचर किया, अब ये कैपिटल अकाउंट पे पूछा जा रहा है। यह सर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये किस पे पूछा जा रहा है, ये कैपिटल अकाउंट पे पूछा जा रहा है। ये एडिशनल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट कितनी है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी है, अदर कैपिटल एक्सपेंस कितने हैं, और इसको सोर्स ऑफ फंड टू मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है आपके, इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है, इनकम ड्यू टू एप्लीकेशन कितना है, इनकम ऑफ अर्लियर ईयर अप टू 15% ऑफ एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट में से कितना यूज हुआ है, बोरोड फंड कितना है, एनी अदर कितना है, ये कैपिटल अकाउंट की आपकी स्टेट बन जाएगी। सर आप देखिए यहाँ पर आपसे कोई रेवेन्यू सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं बनाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट नहीं बताएगी, पहले आपसे कंट्रीब्यूशन पूछेगी और फिर आपने रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पर कितना स्पेंड किया वो पूछा गया है, और इससे देखा जाएगा कि वो 85% है या नहीं है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और ये इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है सर उन लोगों के लिए जिन्होंने इन क्लॉसेस में इनकम जिनकी अनकंडीशनली एग्जेम्प्ट है, उन्हीं के लिए ये शेड्यूल भरना जरूरी है। जो इन क्लॉसेस में आते हैं उनको ये 3 डिटेल देनी है। इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे सर, इसके बारे में भी मैं चर्चा नहीं कर रहा, यहाँ पर ये चर्चा करनी जरूरी है। अगर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट उस केस में जहाँ पर सॉरी इससे अगले बार इस पर चर्चा नहीं कर रही, ये इनकम और एक्सपेंडिचर शेड्यूल IE4 आपके लिए टिप्स है, आज का गुरु मंत्र है, ये लेके जाइएगा। जिन भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रिसीट 5 करोड़ रुपए से कम है, उनकी इनकम अनकंडीशनली एग्जेम्प्ट है, उन्हें सिर्फ शेड्यूल IE4 भरना है, शेड्यूल IE4 भरना है। और इसमें क्या बताना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एप्लीकेबल फॉर एसएससी क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1023C 3rd AD 1023C 3rd AD दैट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और 1023C 3rd AE दैट इज मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपने बताना है कि एजुकेशन है या मेडिकल है। फिर दूसरा आपसे पूछा जा रहा है इसका एड्रेस जहाँ पर ये एक्टिविटी कैरिंग आउट हो रही है। फिर आपसे पूछा कि एनुअल रिसीट कितनी है,
फिर आपसे पूछा कितना आपने इस ऑब्जेक्टिव के लिए लगा दिया और कितना बैलेंस आपने एक्यूमुलेट कर लिया, कितना बैलेंस आपने एक्यूमुलेट कर लिया, यानी पीएल यहाँ पे आपको चाहिए। सिर्फ एनुअल रिसीट 5 करोड़ की रिसीट है, आपने कहा मेरी 4 करोड़ 50 लाख रुपए की रिसीट है। आपने कहा मेरी रिसीट कितनी है, 4 करोड़ 50 लाख रुपए की है। आपने कहा इसमें से मेरे 3 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च हो गए, बाकी आपने क्या कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया, 50 और 15 65 लाख रुपए। तो इस तरह से आपको ये डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ये शेड्यूल आपको ध्यान रखने का कौन से किस पर्पस के लिए है। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, ये पूछे जा रही है कि क्या आपका कोई बिजनेस और प्रोफेशन भी है ट्रस्ट में, बिजनेस और प्रोफेशन का नाम क्या है, ब्रांचेस कितनी है, मेथड ऑफ अकाउंट क्या है, चेंज क्या है। जो बिजनेस वाले हेड की डिटेल होती थी आपकी ITR 356 फॉर्म में, वही डिटेल यहाँ पर सेम है। ये असर्टेड इनकम अंडर सेक्शन 115 TD निकालने का तरीका बताया गया। कोई इस तरह की इनकम अगर है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द ट्रस्ट और टोटल लायबिलिटी ट्रस्ट, नेट वैल्यू ऑफ द एसेट आ जाएगी। और इसमें है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट लिया जा रहा है तो उसके ऊपर है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कभी। लेकिन 115 TD शेड्यूल सिर्फ असर्टेड इनकम के लिए है, इतना आप ध्यान कर लीजिए। अगर किसी ट्रस्ट के पास, किसी सोसाइटी के पास किसी अनलिस्टेड कंपनी में शेयर होल्डिंग है तो आपके देनी। इफ़ यू आर ए अनलिस्टेड कंपनी प्लीज फर्निश। अगर जो ट्रस्ट है वो अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको ये डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। क्या क्या आई हैं ये हमने ITR 6 में भी डिस्कस किया था। ये हर स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम है, जिसका भी मैंने एक ब्रीफ दे दिया। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम जाके बनेगी कि इनकम कैसे काउंट होगी, ये स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम का हरा पार्ट। तो विद दिस थैंक यू सो मच। टाइम कम था लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि हम इसको विद इन टाइम कंप्लीट कर सकें। तो नाउ thank you so much for viewing this webinar, and now over to CA Deepak ji. Thank you, sir, for excellent session. Now, friends, if you have any queries, you can post your queries in the chat box. Today we have very limited time, so we will try to take a few of your queries, and then we will wind up our session in next 5-7 minutes. Sir, I don't know whether ये query आपने ली है क्या? Yushi ji पूछ रही है how the contribution received in kind will be valued like old cloth, food item to be distributed among the poor or needy people. इस तरह के कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे युशी जी, यहाँ पर कोई एसेट्स आई है तो उसकी बात हो रही है। ओल्ड क्लॉथ या फूड आइटम जो आपने साथ के हाथ बांध दी उनकी आपको वैल्यूएशन करने की नहीं, वो तो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। आपको कोई गोल्ड आया है, आपको कोई मकान उसमें दे गया वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में, कोई और टीवी आ गया, फ्रिज आ गया, कोई इस तरह की एसेट्स हैं जिसको आपने कन्वर्ट करके लगाना था, तो उन एसेट्स की बात हो रही है। मेरे थिंक उनकी इंटेंशन ओल्ड क्लॉथ या फूड आइटम्स वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे। Whether Indian citizens sending to trust will appear in FCRA कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल हर, अगर आपके पास फॉरेन से कोई पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है, पर्पस ये नहीं है कि वो फॉरेनर भेज रहा है कि NRI भेज रहा है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन ले रहे हो आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, यानी इफ एनी ट्रस्ट और सोसाइटी इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम फॉरेन आउटसाइड इंडिया टू इन इंडिया, देन डेफिनेटली इट विल पार्ट। आवाज नहीं आ रही दीपक जी आपकी। Sorry, friends, if you have any other query, you can post it in the chat box. We will quickly take your queries. And if you want to download the certificate for today's free session, for the participation certificate, you can download from the link given in the description. That link will be valid for another 1 hour. After 1 hour, it will not work. So, जो भी live participants थे वही उसका download कर पाएंगे, and they will only be able to डाउनलोड द सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। और अभी आफ्टर 25 मिनट्स टैक्स ऑडिट का सेशन लामा जी का स्टार्ट होने वाला है। सो लामा जी इज गोइंग टू टेक 6 days सेशन ऑन द टैक्स ऑडिट, हाउ यू कैन फाइल द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्लॉजेज इन द टैक्स ऑडिट जिस पे हम डिस्कशन नहीं करते हैं
और इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट एंड नेसेसरी इन टुडे सिनेरियो कि हम टैक्स ऑडिट जब भी फाइल करते हैं वो मैं एक एक क्लोज के बारे में बताओ और एक एक क्लोज को डीपली स्टडी करें एंड देन ओनली वी विल फाइल द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। जनरली हमारी जो आदत है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में वी ओनली इंटेंड टू फिल द डिटेल्स ऑफ द टीडीएस पार्ट and rest all the information we mention it as NA. So ऐसा नहीं होना चाहिए। We need to properly fill the tax audit report. Then after filing that क्या क्या हमें डिस्क्लोजर डालने चाहिए, क्या क्या हमें कमेंट्स डालने चाहिए। लाइक लास्ट ईयर जैसे मेरे सर से भी बात हो रही थी कि जो भी आपके बैंक अकाउंट आपको आपको नहीं पता है कि उसने अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट करी है या अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट नहीं करी है। उसमें क्लॉज होती है दैट क्लियरली आस्क कि पेमेंट आपने चेक कर लिया कि अकाउंट पे ही चेक से हुई या नहीं हुई है। बट हमें तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट मिलती है साल के आखिर में मिलती है, वी आर नॉट श्योर वेदर द पेमेंट हैज बीन डन फ्रॉम द अकाउंट पे ही चेक और नॉट। सो उसके लिए क्या हमें कोई डिस्क्लोजर डालने की जरूरत है, क्या हम बिना डिस्क्लोजर के उसमें यस कर दें या नो कर दें। तो देयर आर सो मेनी क्लॉजेज इन द टैक्स ऑडिट जिसके ऊपर लांबा जी विल टेक 6 days डिटेल डिस्कशन फ्रॉम टुडे टू नेक्स्ट Saturday. Timing will be 7 to 9 p.m. Anybody wants to join, link for the same has been given in the description. और अगर किसी को 6 days का ITR का भी ज्वाइन करना था तो दैट आल्सो यू कैन ज्वाइन इन केस यू मिस्ड इट। ITR सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। टुडे वाज द लास्ट सेशन एंड दैट्स व्हाई वी हैव डन इट हियर ऑन द यूट्यूब। सो एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन दैट एज वेल, यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। Thank you, Santosh ji, for your comments and feedback. Kindly comments and give your feedback about the today's session. सर ये कि नारायण अय्यर जी का क्वेश्चन था उसके रिलेटेड इन्होंने कुछ फर्दर कमेंट करा है। एनआरओ अकाउंट तो सर इंडिया में ही होगा उसका। अगर इंडिया से इंडिया में पैसा आ रहा तो FCRA कहाँ लगा? FCRA तभी लगेगा मेरी ओपिनियन में। हालांकि मैं FCRA का कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करता, लेकिन जब हिंदुस्तान के बाहर से पैसा आएगा। Okay. So it was very nice discussion and many things we have learned. So now I'm winding up this session and we'll see those who have enrolled for tax audit session soon at the 7 o'clock on the Zoom. Till then I'm ending this session. So sir थोड़ी देर में मिलते हैं 7 बजे। ठीक है।